Hello, electronics second year. Last we have completed the types of the filter, in which I told you that there's a two type of filters. One is an active filter, and another is your passive filter. And after this, your on the behalf of your active and passive filter, the another classification of filter is on the basis of the connection and the on the basis of the properties. So on the basis of the properties, you can say like which type of frequency they are passing. If they are passing the low pass frequency, lower frequency, then it is a low pass filter. If it is passing the high frequency, then it is a high pass filter. If it is passing the mixture of the high or low, some frequencies of high and some frequencies are low, then it is known as a band pass filter. And when it is attenuate, rejecting some high frequency and some low frequency, then it is known as band stop filter. On the basis of the connection Z1 and Z2, series and shunt impedances, on the connection, on the behalf of their connection, we have a two types of filter. One is your constant K filter, yeah, you can say prototype filter. Both are the same names, constant K filter and prototype filter. And another is your M derived filter. So in this lecture, we are discussing the constant K or prototype filter and constant K prototype filter. In a constant K section prototype filter, we will discuss the properties of our filters. Like we will discuss the constant K low pass filter, constant K high pass filter, constant K band pass filter, and constant K band stop filter. Means this type of filter we will connect by this four. Like it means on the basis of the property, we will correlate with this. In this section, under this section, we will discuss these fours. So constant K section or prototype filter is that filter. It can be of two types. It can be the T type or it can be the pi section, whatever it can be. Now either your T filter or your pi filter. T filter is like this, and this the impedances will connected over here, and in a pi your impedances will be connected over here. In a T section, this one will be the equivalent and this shunt will be the different. And in this pi section, shunt will be the same and series will be the different. That means in every type of filter we are using this Z1 and Z2. If in a T, Z1 by 2, Z1 by 2, and this is Z2. And in a pi section filter, Z1 is this and Z2 by 2, Z2 by 2. So by this we can understand that whatever be the type of the filter, but here will be the two type of impedances used in a filter. One is your Z1 and another is your Z2. That means these connections are somewhat different and the filter will be the different. So the constant K section filter आपका filter is that filter when the Z1 or Z1 and Z2 impedances product will be equal to your R node square. This is a K section filter. That means shunt और series कोई भी आपकी क्या हो इम्पिडेंसेस हो और इम्पिडेंसेस के प्रोडक्ट अगर आपका आर नोड स्क्वायर के बराबर है, मींस आर नोड स्क्वायर जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है. क्या है? कांस्टेंट है. और जब कांस्टेंट है और हमें ये पता है ये रेजिस्टिव है, दैट मीन्स की वैल्यू जो है वो क्या है? रियल होगी. कल भी बताया था मैंने, जेड इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस जे बीटा या आर प्लस जे एक्स. तो एक तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, प्लस इसकी जो वैल्यू होगी वो रियल होगी. यानी ये जो रेजिस्टेंस है
ये रेजिस्टेंस जो है ये आपका क्या होगा, किसी भी फिल्टर की क्या होगी, डिज़ाइन इम्पीडेंस होगी। क्या होगी, डिज़ाइन इम्पीडेंस। क्या होगी, डिज़ाइन इम्पीडेंस, या हम कह सकते हैं नॉमिनल इम्पीडेंस। डन। तो और हमें एक चीज़ ये भी पता है कि इस आपकी जो वैल्यू है, जो डिज़ाइन इम्पीडेंस है, जैसे Z1 और Z2 है, ये फ्रिक्वेंसीज के साथ आपकी चेंज होती है, लेकिन जो आपकी डिज़ाइन इम्पीडेंस है, डिज़ाइन इम्पीडेंस जो है, ये तो फिल्टर की इम्पीडेंस हुई, फिल्टर की जो डिज़ाइन इम्पीडेंस है, इसकी जो वैल्यू है वो आपके फ्रिक्वेंसी के साथ चेंज, उसके पे फ्रिक्वेंसी का कोई चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है बच्चों। तो ये फर्स्ट है आपका कांस्टेंट के लो पास, कांस्टेंट के टाइप है प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। ये कंडीशन है Z1 Z2 शुड बी इक्वल टू R नोट स्क्वायर, मैंने आपको समझाई दिया है। तो जैसे आपका Z1/2 ये टोटल Z1 के इक्वल होने चाहिए, Z2 के। तो ये L और C से मिला के बना रहे हैं हम, ठीक है, फिल्टर बना रहे हैं T टाइप में। तो जो आपके फ़िल्टर होते हैं वो आपके L और C से मिलके बनते हैं। तो ये Z1 की जगह क्या हो जाएगा, L/2 और ये Z2 क्या हो जाएगा, C। तो L और C से टोटल क्या हो गया, L, जैसे Z होता था टोटल Z सीरीज़ में, T में। इस तरह आप उसमें चलिए पाई टाइप में, पाई टाइप फिल्टर में क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका L और C आपका हो जाएगा C/2 और आपका C/2। ठीक है, ये आपकी इनपुट है और ये आपकी आउटपुट है। तो इसमें हमें समझ आ रहा है कि ये एक वो फिल्टर है, ये सबसे सिंपल फिल्टर है जिसमें क्या है, एक डेफिनेट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक के सिग्नल्स को ये पास करेगा और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर के सिग्नल को ये क्या कर देगा, रोक देगा। अगर मैं कहूँ कि ये FC है, ये एक आपकी सिग्नल्स हैं, तो ये क्या करेगा, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक के, क्योंकि क्या है लो पास फिल्टर है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से नीचे के सिग्नल को इसको पास कर देगा और उसको क्या कर देगा, रोक देगा, इनको पास नहीं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल के ऊपर को पास नहीं होने देगा। तो हम कह सकते हैं ये तो हो गया आपका पास बैंड और ये आपका क्या हो गया, अटेन्युएशन बैंड। पहले पूरा समझा चुकी हूँ मैं, अटेन्युएशन बैंड। और ये ग्राफ किसके बीच में है, अल्फा और फ्रिक्वेंसी के बीच में, अटेन्युएशन और फ्रिक्वेंसी के बीच में। ठीक है। कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर में क्या है, अब आपका ये चेंज हो जाएगा, L इधर आ जाएगा, जहाँ पे L है वहाँ C आ जाएगा, C पे है वहाँ पे L आ जाएगा। तो जैसे T टाइप में यहाँ पे आपका L था, यहाँ पे आपका C आ जाएगा, यहाँ आपका C आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपका C था ना, तो ये तो L ही होना, L ही होगा। ये क्या होता है, टोटल Z के बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर आप सीरीज़ में कैपेसिटर को जोड़ोगे तो उल्टा होता है रजिस्टर का। तो 1/R जैसे होता है वो आपका 1/C हो जाता है सीरीज़ में। तो 1/C अगर 1/C करूँगी तो आपका 2/C हो जाएगा। मुझे टोटल क्या चाहिए, C चाहिए, वो टोटल C/2 आएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2C। जब 2C को आप सीरीज़ में कैपेसिटर को जोड़ोगे तो 1/2C तो क्या हो जाएगा आपका 2/2C, और 2 से 2 कट जाएगा तो उल्टा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आपका C आ जाएगा। ठीक है। ये क्या करेगा, इसी तरह आप इसमें अपने पाई में चलिए, पाई में क्या हो जाएगा, ये C आ जाएगा, अब ये L, ये भी ऐसे ही होगा 2L। ठीक है। ये क्या करेगा, ये एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी से ऊपर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर के सिग्नल को क्या करेगा, पास करेगा, और नीचे वाले को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो ये अटेन्युएशन बैंड हो गया और ये क्या हो गया आपका बैंड पास। ठीक है। ये आपका पास बैंड हो गया, पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर के सिग्नल को क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है। देखिए कांस्टेंट के प्रोटोटाइप बैंड पास फिल्टर क्या करता है, ये आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ऊपर के सिग्नल को पास करता है, एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी तक के सिग्नल को तो पास करता है, और एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी तक के सिग्नल को क्या कर देता है, रोक देता है। यानी यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, F1 और F2, और F1 माइनस F2 के डिफरेंस, यानी इस वाले को क्या करेगा, पास करेगा। ये पास बैंड है और ये क्या है आपका अटेन्युएशन। इस तरह के जो फिल्टर हैं वो आपके किससे बन के बनते हैं, आपको इसमें ट्यूनिंग सर्किट का यूज करना पड़ता है।
तो ट्यूनिंग सर्किट में जैसे टी फिल्टर की मैं बात करूँ, टी टाइप की बात करूँ, और यहाँ आ गया आपका पाई सेक्शन। तो टी टाइप में आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया सीरीज़ में, तो आप सीरीज़ 2 ट्यूनिंग सर्किट यूज होंगे। एक तो सीरीज़ में, सीरीज़ वाली में ट्यूनिंग सर्किट होगा, मतलब हर बार इसमें जो सिंपल इम्पीडेंस नहीं जुड़ेगी, मतलब एल और सी सिंपल नहीं जुड़ेगा, हर बार आपका ट्यूनिंग। और ट्यूनिंग सर्किट किससे मिलके बनता है, लिखा है मैंने सीरीज़ ट्यूनिंग और पैरेलल ट्यूनिंग, ठीक है। सीरीज़ में भी ट्यूनिंग सर्किट यूज होगा, पैरेलल में भी। तो जो ट्यूनिंग सर्किट है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, एल और सी का। तो जैसे मैं इसकी बात करूँ, फिर आपका एक हो जाएगा दिस वन। ये देखिएगा, ठीक है, ये वाली बात हो गई। L1/2 L1/2, ठीक है, टोटल L हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2C1 और 2C1, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा L, और ये हो जाएगा L2C2, ठीक है। ये आपका हो गया टी टाइप। और पाई टाइप कैसे हो जाएगा आपका, पाई टाइप आपका कुछ ऐसे हो जाएगा L1C1, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा L2 और C2/2, इस तरह इसमें चलेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका सॉरी, यहाँ कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2L2 और ये हो जाएगा C2/2। ये आपका हो गया बैंड पास फिल्टर, ठीक है। और इसका जो आपका ट्रांजिशन बैंड आएगा वो मैंने दिखाई दिया इसमें। ये आपका पास बैंड है, ये आपका ट्रांजिशन बैंड है, यही कह सकते हैं। ट्रांजिशन को हम स्टॉप बैंड भी कह सकते हैं, स्टॉप बैंड। ये हो जाएगा पास बैंड। देखिए अब नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टेंट के टाइप बैंड स्टॉप फिल्टर। जैसे हमने उसके अंदर उल्टा कर दिया था बैंड स्टॉप और बैंड पास के लिए, इसी तरह बैंड स्टॉप फिल्टर में क्या हो जाएगा, ये तो इधर पहुंच जाएंगे और ये वाला इधर आ जाएगा। तो देखिएगा ज़रा कैसे होगा, देखिएगा, ये देखिए, ये देखिएगा 2C1 क्या है L1/2 क्या है ये 2C1, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस वाले में चलो, क्या है ये वाला C1/2, इसी तरह 2L2 C1/2। ये आपका हो गया बैंड स्टॉप फिल्टर। और इसका जो फ्रिक्वेंसी ग्राफ आएगा वो मैं इसी में बता देती हूँ। ये देखिएगा फ्रिक्वेंसी ग्राफ जो इसमें आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है। बैंड स्टॉप फिल्टर में क्या है, इस वाली फ्रिक्वेंसी को रोकेगा बैंड स्टॉप फिल्टर में, मतलब किसी डिजायर्ड को, तो ये इसको रोकेगा बैंड स्टॉप में। तो ये क्या हो जाएगा आपका पास बैंड, इसको पास कर देगा, इसको पास कर देगा, ये क्या हो जाएगा स्टॉप बैंड, अल्फा अटेन्यूएशन फ्रिक्वेंसी। अब हमें नेक्स्ट में करना है इसका एनालिसिस।